Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नयेष्टकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय और अंतिम श्लोक 39। तम मे नीरे बलमूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रामनविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। किसी को बोलना है प्रभु जी? हरे कृष्णा। एक बार रिपीट करता हूँ। बलमूढा स्त्रीणां चानुव्रतां रः अप्रामाणविदो भ्रातुरीश्वरं मतयो यथा। धन्यवाद प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। Translation: The simple and delicate woman truly thought that Lord Sri Krishna and their beloved husband followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. Purport: Even the transcendental wives of Lord Sri Krishna did not know completely the unfathomable glories of the Lord. This ignorance is not mundane because there is some action of the internal potency of the Lord in the exchange of feelings between him and his eternal associates. The Lord exchanges transcendental relations in 5 ways: as proprietor, master, friend, son, and lover. And in each of these pastimes, he plays fully by the potency of Yog Maya, the internal potency. He plays exactly like an equal friend with the cowherd boys or even with friends like Arjuna. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of cowherd damsels. And he plays exactly like a husband in the presence of the queens of Dwarka. Such devotees of the Lord never think of the Lord as the supreme, but think of him exactly as a common friend, a pet son, or a lover or husband very much dear to heart and soul. That is the relation between the Lord and his transcendental devotees, who act as his associates in the spiritual sky, where there are innumerable Vaikuntha planets. When the Lord descends, he does so along with his entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevail without any mundane tinge of lording it over the creation of the Lord. Such devotees of the Lord are all liberated souls and perfect representations of the marginal or internal potency in the complete negation of the influence of the external potency. The wives of Lord Krishna were made to forget the immeasurable glories of the Lord by the internal potency so that there might not be any flaw of exchange, and they took it for granted that the Lord was a hand-packed husband, always following them in lonely places. In other words, even the personal associates of the Lord do not know him perfectly well. So what do the thesis writers or mental speculators know about the transcendental glories of the Lord? The mental speculators are different speculators present different theses as to his becoming the cause of the creation, the ingredients of the creation, or the material and efficient cause of the creation, etc. But all this is but partial knowledge about the Lord. Factually, they are as ignorant as the common man. The Lord
can be known by the mercy of the Lord only and by no other means. But since the dealings of the Lord with his wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on the transcendental plane without material contamination. Thus end the Bhaktivedanta purpose of the first canto, 11th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Krishna's Entrance into Dwarka. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नामचार्य पदानिताय गुरुपदायिने गुरुपदां जय राम मुखं करोति वाचालं पंकुलं मयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ श्रीमद् भागवतम के प्रातः सत्र में सबको दंडवत प्रणाम। आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, उसमें 11वां अध्याय। और हमने जैसे देखा भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका आए तो उनका इतना भव्य और सुंदर स्वागत किया सभी भक्तों ने। पहले तो अपना भगवान ने शंख बजा के सबको ये बताया कि मतलब सबको ये खुशी की आनंद आया और सभी द्वारका वासियों ने फिर उनका स्वागत किया। फिर सभी उनके जो मतलब परिवार में थे उन्होंने भी स्वागत किया। फिर अब हम देख रहे हैं अंत में भगवान के जो पत्नियां हैं उन्होंने भी भगवान का स्वागत किया और भगवान किस तरह अपना उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में ये श्लोक में हमें समझने मिलता है। तो मैंने उर्मिला माता जी, बाद में रोमपाद स्वामी जी, बाद में ब्रज भूमि माता जी का इस्कॉन डिजायर ट्री से प्रवचन सुना था, तो वही सुन के मैं यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी शुद्धिकरण और सभी भक्तों की गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, यथारूप प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्णा। इस श्लोक में हम देखते हैं कि श्लोक में मूढ़ा और अबला का उपयोग किया गया है शब्द का। तो हरग्रेस उर्मिला माता जी बताते हैं कि मूढ़ा यानी हम देख सकते हैं कि एक गधे को कहा जाता है या एक पागल को कहा जाता है, और अबला मतलब हम देख सकते हैं कि कई बार हम कोई जो निसहाय स्त्री होती है उसे अबला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग ये किया गया है उसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि ये जो प्रयोग किया गया है ये मूढ़ा मतलब सिंपल साधारण और अबला मतलब डेलिकेट नाजुक, और ये भगवान की जो पत्नियां हैं उनके बारे में ये संबोधन किया गया है। और उनके बारे में ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वे शुद्ध दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में और भक्ति में थे भगवान के, और उनका जो स्तर था वो पूर्णतः आध्यात्मिक था, और उसमें शेष तनिक मात्र भी भौतिक दूषण नहीं था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को उनकी पत्नियों द्वारा केवल प्रेम और उनके लिए भाव के कारण भगवान को ऐसा कहा जाता है कि भगवान को उन्होंने डोमिनेट किया, मतलब भगवान उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो माता जी बता रहे थे कि जिस तरह एक जो राष्ट्रपति होता है, जैसे बैरक ओबामा जी थे, तो वो मतलब उनके वो समय में माता जी बता रहे थे कि यदि कोई अपने वो ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे जो उनके पत्नी होती है वो उनके साथ वो प्रेममयी आदान प्रदान नहीं कर सकती है। लेकिन जब भी वो मतलब अपने घर में होते हैं या वे दोनों कोई एक स्थल पे गए होते
तो वहाँ पे वो उनकी पत्नी उनके साथ वैसा वो व्यवहार कर सकती हैं, जिनको मतलब वो प्रेसिडेंट होते हुए भी वो उनका वो स्थिति को ऐसे वो अपनी पत्नी के लिए उनकी सब बातें सुन सकते हैं, उनका कहा करते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक अक्सर कहते हैं इंग्लिश में हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो उसका हिंदी में मैंने देख रहा था, तो हिंदी में स्त्री वश कहा जाता है। तो आज आज के भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो मतलब ऐसा होते हैं, जो स्त्रीवश होते हैं, तो वो उसे हंसी का पात्र बन जाता है वो, कि ये क्या, ये तो मतलब सब अपनी ये पत्नी का किया कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। रोमपाद स्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान जो भी करते हैं उसका गुणगान होता है। जैसे भगवान ने चोरी की, माखन चोरी की, तो उनको माखन चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। फिर भगवान ने जब भी बड़े ये जरासंध को इतनी बार हराया, और फिर उसके बाद वापस जो अंत में आए जरासंध ने वो काल यवन को और उसको भेजा, तो बाद में भगवान वो युद्ध भूमि छोड़ के भागे क्षत्रिय होके। ये क्षत्रिय के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, लेकिन फिर भी भगवान की उसमें गुणगान हुआ, उन्हें रणछोड़ जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान जो करते हैं वो सब कार्य गुणगान होता है, और जो मनुष्य करते हैं उसमें वो हंसी का पात्र हो सकता है। इसके लिए हम भगवान भगवान का ये इमिटेशन नहीं कर सकते, उसका अनुकरण नहीं कर सकते हम। भगवान, अभी यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान तो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी वे क्यों अपने भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें ये यहाँ से पता चलता है कि जिस तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वे कभी भी भगवान के बारे में जानने में, भगवान के गुणगान करने में कभी भी उन्हें संतुष्ट नहीं होता है। वे और करना चाहते हैं, वे और करना चाहते हैं। तो इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के बारे में जानने में, अपने भक्तों का अनुभव समझने में उन्हें भी संतोष नहीं होता है, और वो और उसमें समझना चाहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान ने जैसे श्रीमती राधा रानी जी को देखा, और उनके आनंद को उन्होंने ये अनुभव किया, और उनको ऐसा ये समझ में आया कि इन्हें मुझसे ज़्यादा आनंद हो रहा है। तो वो जो अनुभव करने के लिए भगवान ने स्वयं राधा रानी का जो भाव था वो ग्रहण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण लेके आए भूमि पे, अपनी ही जो प्रेममयी भक्ति का ये स्वाद अनुभव करने के लिए, और सभी भक्तों को जैसे बिना किसी कंडीशन और बिना किसी कोई क्वालिफिकेशन सबको दिया वो भाव। अभी यहाँ पे भगवान जो आते हैं, तो भगवान अपने जो भी पूरे जो पार्षद होते हैं, अपनी साथ सामग्री सब पूरी जो होती है, वो अपने जो आध्यात्मिक जगत से पूरे साथ में आते हैं। और ये जो भगवान आते हैं उसमें उनके जो संगी होते हैं नित्य, जो उनसे शुद्ध प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, उनमें एक जो थोड़ी मात्रा में भी उनका ऐसा नहीं होता भाव कि हम जो भगवान की सृष्टि है उसमें अपना स्वामित्व जताए, और उन पे कोई बहिरंगा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम जब भी देखते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने अपनी पूरी ब्रजभूमि आध्यात्मिक धाम में थी उसे पूरा लेके आए यहाँ पे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो वे भी अपने पार्षदों को लेके आए साथ में संकीर्तन यज्ञ करने के लिए, जो श्रीमद् भागवतम में भी उसकी पुष्टि होती है। तो यहाँ पे जो भी भगवान के साथ अपने पार्षदों को लेके आते हैं, वे पार्षद जो होते हैं भगवान के, वे जो ये बहिरंगा शक्ति है उसके प्रभाव में नहीं आते, और वे जो भौतिक जगत है उस पर स्वामित्व नहीं जताते। वे केवल भगवान की शुद्ध भक्ति और प्रेममयी भक्ति करने का उनका ध्येय होता है। रोमपाद स्वामी जी बताते हैं कि देवकी जी और वसुदेव जी जब भी कारावास में थे और भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया, तभी उनका दर्शन करके कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगा कि आप हमारे पीछे छुप जाओ, कंस आएगा और आपको मार देगा। तो ये उनको वात्सल्य भाव से उनको ऐसा लग रहा था, भगवान के प्रति इतना प्रेम था उनकी रक्षा करने के लिए। अभी भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको कौन मार सकता है, लेकिन उनको ऐसा लगा। फिर जब भी आगे जाके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए, और फिर उन्होंने कंस और आदि सबको वध किया, और जब भी वे कारावास में देवकी जी और वसुदेव जी को बाहर निकालने आए और उनका दर्शन किया, तभी देवकी जी और वसुदेव जी ने तभी उनको समझ गए थे कि ये भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम। तो वो उनको उस तरह देख रहे थे कुछ समय के लिए। फिर भगवान समझ गए, तो उन्होंने अपना योग माया का पर्दा दिया। तो उससे फिर वापस देवकी जी और वसुदेव जी को ऐसा लगा, अरे
ये तो मतलब इतने समय से ये लोग बाहर थे और इनको कुछ शिक्षण नहीं मिला, तो अभी ये क्षत्रिय होने के कारण इनको जो गुरु जी के पास जाना चाहिए, पाठशाला में जाना चाहिए और उस तरह का उनको मतलब शिक्षण मिलना चाहिए। तो वापस उनका वो जो भाव था वो जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति का प्रभाव था उससे उनका वैसा ढक गया, ऐसा रोमपाद स्वामी जी बता रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान के नित्य जो सेवक हैं, पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, वे भी भगवान को पूर्णतया समझ नहीं सकते, कि भगवान के बारे में समझ नहीं सकते, ऐसा शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर वे बता रहे हैं कि ये जो भगवान के भक्त हैं वो जो पर्सनल एसोसिएट है वो भगवान के बारे में पूरी तरह नहीं समझ सकते। जैसे द्वारका में भगवान की जो पत्नियां हैं वो भगवान को मतलब अपने पति के रूप में देख रही थी और उनके साथ वो आदान प्रदान कर रही थी। तो भगवान को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो उन्हें उस भाव से वो नहीं देख रही थी। तो यहाँ से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भगवान को ये उनके नित्य पर्सनल सेवक है वो भी इतना नहीं समझ सकते। तो ये जो जो भौतिक जगत में थीसिस राइटर है, मेंटल स्पेक्युलेटर्स है, यानी जो अपना जो सब अपना विज्ञापन देते हैं और सब अपना जो मन से जो अपना सब ये स्पेक्युलेटर्स जो अपना सब बनाते हैं, वो भगवान को कैसे, भगवान के जो ये दिव्य गुणगान है वो कैसे वो समझ सकते हैं। भगवत गीता में भी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को नहीं समझ सकते। एक तो मूढ़ा, माया अपहृत ज्ञाना, आसुरिम और नराधम। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये मेंटल स्पेक्युलेटर्स है वो भगवान को भगवान के बारे में तो वो समझते नहीं है, लेकिन जो भगवान की सृष्टि है उसके बारे में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन या पुस्तकें लिखते हैं और वो जो भगवान की जो सृष्टि का कारण है, बाद में भगवान की सृष्टि में क्या क्या सामग्री है, बाद में भगवान की सृष्टि या उसका जो मुख्य कारण है उसके सर्जन का, उसके बारे में वे अपने मनगढ़ित सब विज्ञापन और वो सब बताते हैं। तो वो सब जो होता है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो पार्शियल नॉलेज अबाउट द लॉर्ड, वो केवल थोड़ी सी जानकारी है भगवान के बारे में, वो पूर्णतया जानकारी नहीं है भगवान के बारे में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को जानना है तो केवल और केवल सिर्फ भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं और भगवान की कृपा के बिना हम मतलब उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भगवान को जानने के लिए। और भगवान यहाँ पे जो श्लोक है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ये सुत गोस्वामी जी बता रहे मतयो यथा, मतलब यहाँ पे जो भगवान का मत है, और रोमपाद स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो भगवान का मत है, लॉर्ड्स ओपिनियन इज फैक्ट, मतलब भगवान का जो मत है वही सत्य है और इसमें मतलब उसमें और कुछ ये मतलब ये स्पेकुलेट या इसमें कोई बातचीत घुमा फिरा के नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान ने बताया वो सत्य है, उनका जो मत सत्य है, ऐसा रोमपाद स्वामी जी बताते हैं अपने प्रवचन में। और यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को यदि जानना है तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं और उसके सिवा हम और किसी ये मार्ग नहीं है हम भगवान को जान सकते हैं। हम देख सकते हैं दामोदर लीला में जैसे यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास करती हैं और वो मतलब वात्सल्य भाव प्रेममयी ऐसे भगवान के बारे में उनका भाव था। और वो जब भगवान देखते हैं कि वो बहुत थक जाते हैं तो भगवान फिर वो पकड़ जाते हैं और फिर यशोदा माई उनको बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान बनते नहीं है। फिर भी जब यशोदा माई का वो प्रयास देखते हैं और यशोदा माई थक जाती है, ये सब देख के भगवान अपनी कृपा शक्ति करते हैं और बाद में अंत में भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह भगवान जो होते हैं वो भक्तों को अपनी कृपा से ही अपने बारे में जानकारी देते हैं। अंत में हम देखते हैं जैसे कल सीता नवमी गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सुना था, वो शेयर करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और द्वारका में उनकी पत्नियों के बारे में वर्णन आ रहा था, तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी और सीता मैया के बारे में भी आता है बहुत सुंदर प्रसंग। जैसे उन्होंने जब भी वो धनुष भंग के लिए जा रहे थे तो उसके पहले विश्वामित्र जी के साथ वो जनक जी के यहाँ गए थे।
फिर वहाँ पे मिथिला में वो जब भी एक उनको स्थान दिया गया वहाँ पे विश्वामित्र जी के साथ, तो वहाँ पे विश्वामित्र जी के लिए और वहाँ पे पूजा सेवा के लिए वे फूल लेने गए वो बगीचे में एक, तो वहाँ पे भी सीता मैया थी और उन्होंने और भगवान श्री राम ने अपने आप को देखा और देखने मात्र से ही मतलब जैसे सीता मैया जी ने कह दिया कि मैं आपको ही मतलब ऐसा ये वर के रूप में स्वीकार करती हूँ, और यह भगवान श्री राम ने भी उनको आंखों से ही बता दिया कि हाँ ठीक है। फिर तो बाद में आगे धनुष्य भंग की लीला हुई और आगे जाके फिर उनका विवाह हुआ, फिर उनका जैसे वनवास में भी जाना हुआ, तो सीता मैया ने भी उनका मतलब तभी भी वे तो राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जैसे जो ये पतिव्रता धर्म है उसका पूरातया एक दृष्टांत स्थापित किया कि उनके साथ वो सब तपस्या करके भी वे उनके साथ तैयार हो गई जाने के लिए वन में। और फिर आगे जाके भी देखते हैं कि उनका जैसे ये जब भी वो रावण के यहाँ अशोक वाटिका में थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भगवान का अपने स्वामी का भगवान श्री राम का सतत स्मरण करते रहे, और उन्होंने मतलब कुछ क्षण के लिए भी ऐसा ये नहीं सोचा कि अरे इसमें ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा। उन्हें पूरी मतलब भगवान के ऊपर ये श्रद्धा थी और वो पूर्णतया उनको समर्पित थी। तो यहाँ पे सीता जी के बारे में एक जो प्रवचन में सुना था, तो यहाँ पे सीता जी तो भगवान के जो शुद्ध भक्त और उनके जैसे संगिनी है। और यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए बता दें कि सीता माता जी जो है वो जीव है और जैसे भगवान के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी वो अभी ये वो एक मृग आया सुवर्ण मृग, तो उसे देख के जैसे सीता मैया ने बोला कि वो मुझे चाहिए, तो वैसे जीव को भी जब भी भौतिक प्रलोभन आते हैं तो उसके पीछे उसका वो मन आकर्षित होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये मुझे चाहिए। तो भगवान जब भी वो उसे वो मिलने जाता है तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। तो उसमें भी फिर भगवान लक्ष्मण जी को सीता जी की रक्षा के लिए छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि लक्ष्मण जी यानी जो हमारे गुरु होते हैं वो भगवान हमें गुरु के पास समर्पित करके जाते हैं, तो हम गुरु के पास ये सीखने के लिए मतलब गुरु गुरु की शरणागति में रहते हैं। फिर भी जब भी हमें और भौतिक इच्छा होती है तो हम वो गुरु जैसे सीता जी ने लक्ष्मण जी को भी भेजा, भगवान श्री राम का जो वो मृग ने आवाज निकाला कि बचाओ लक्ष्मण बचाओ, तो गुरुजी मतलब लक्ष्मण जी को भी भेजा। तो वैसे हमें भी कुछ ऐसे ये भौतिक जो इच्छा के कारण हम जैसे गुरु महाराज से भी संपर्क में थोड़ा कम होते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जो जैसे लक्ष्मण जी ने वो लक्ष्मण रेखा की थी, वैसे गुरु महाराज जो होते हैं शिल प्रभुपाद जी, और वो अपने आज्ञा अपने आदेश देते हैं, तो वो हम यदि आज्ञा आदेश जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते तो सुरक्षित रहते। लेकिन फिर भी जैसे सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वो रावण उनको उठा के लेके गया। तो उसी तरह जैसे हम उनकी जो आज्ञाएं होती है उसका यदि कुछ उल्लंघन करते हैं तो हमें भी जैसे वो भौतिक इच्छा भौतिक माया हमें उठा के लेके जाती है। और फिर भी वो जैसे अशोक वाटिका में थी सीता जी, तो हनुमान जी आए और उनको मतलब सुरक्षा दी और उनको आश्वासन दिया कि भगवान आएंगे आपको छुड़ा के लेके जाएंगे। हालांकि वे स्वयं सक्षम थे सीता जी को लेके जाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान का गुणगान हो और सीता जी का भी जो पतिव्रता धर्म है उसका भी पालन हो, उसके लिए उन्होंने माता सीता को आश्वासन दिया और साथ में ये भी बता दिया कि भगवान के भक्तों में भी देखिए ये पूरा जो उन्होंने लंका को भी पूरा जला दिया। तो यहाँ पे जब भी हम भौतिक इच्छा और उसके कारण खींच जाते हैं कहीं पे, जैसे हम कोई कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, तो गुरु महाराज आते हैं हनुमान जी के जैसे और वो हमें आश्वासन देते हैं कि आप ये हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे जुड़े रहिए और जो आज्ञा है उसके आज्ञा को पालन कीजिए और भगवान एक दिन आपको जरूर मुक्त करेंगे। तो ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा जी पवन प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। बहुत सा चीज रोमपाद महाराज जी का, फिर उर्मिला माता जी का, और कल जो आपने सीता नवमी का जो लेक्चर सुना वो बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट करके आज का जो श्लोक है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया।
और ये जो बात कहा जो अपना जो लक्ष्मण रेखा वाला, इट वाज वेरी नाइस कि जैसे प्रभुपाद जी ने या हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स ने हमको जो इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं, ये उस लक्ष्मण रेखा की तरह है। तो उसको हमें बिल्कुल कभी भी पार नहीं है। हम लोग तो ऐसा करते नहीं, लेकिन कभी ऐसा लाइफ में मौका आए तो हम लोग को उसको सोचना भी नहीं चाहिए हम लोगों को उसके बारे में, क्योंकि जैसे ही पार करते हैं तो जो रावण है, जो दुखों का कहो या माया का, इमिडिएटली हम पे असर करता है। और फिर जो है मतलब भगवान भी हमारे इतना, क्योंकि हमारी ही इच्छा थी हम उसको पार करें। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और इसको मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जैसे सीता मैया ने जो किया वो तो एक लक्ष्मण रेखा पार किया तो एक वो तो पास टाइम था, क्योंकि वो अगर नहीं करती तो रावण का वध नहीं होता था। ये सब जो पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने जानबूझ के किया ऐसा ताकि रावण जैसे जो है, और कितने हम लोग देखते हैं रामायण में भगवान रामचंद्र ने कई हजारों हजारों राक्षसों का, जब फर्स्ट टाइम जब वो खरदूषण और मरीच जब आए थे फर्स्ट टाइम, तो उसी टाइम कुछ 1400,000 या कुछ ऐसा कुछ बड़ा सेना था। वो इतना, वो एक शॉट में उन्होंने साफ कर दिया था। तो उन्होंने एक बहाना लिया था बस, एक भगवान ने। तो भगवान जो भी करते हैं वो एक लीला होता है। और दूसरा बात अगर ये भी देखें तो सीता मैया इतनी पावरफुल थी कि रावण को अगर एक मतलब एक झापड़ भी मार दी तो मर जाता था वो। शी वॉज सो पावरफुल। हम लोग देखते हैं बचपन में जब 6-7 साल की थी तभी वो जो जिस रावण जो जो भगवान शिव जी का धनुष उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया था, उसने छोटी 6 साल की थी तब वो धनुष उठा के वो फूल तोड़ती थी वो। तो शी वॉज वेरी पावरफुल। तो हम लोग ये समझना चाहिए दिस इज ऑल पास्ट टाइम विच लॉर्ड डस। और हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो हैंडपैक्ट, मतलब पत्नी के वश में होके जो पति कार्य करता है, तो उनको लगता था कि ये हमारा हैंडपैक्ट हस्बैंड है, ये हमको हमारे वश में है जो चाहे। लेकिन ये भगवान का लीला है। तो भगवान जो भी करते हैं इट्स ऑल वंडरफुल पास टाइम्स। तो उसको आनंद लेना चाहिए उसको, और अपना भक्ति का वर्धन करना चाहिए, न कि डाउट करना चाहिए। तो यही बोलना है। जी पवन प्रभु, बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स तुमने कनेक्ट किए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक सिर्फ साथ में ये भी स्मरण है कि सीता जी जो है वे जब भी रावण जब भी उनको लेके जाते हैं उसके पहले, मतलब जो सीता जी थे वे अपना जो छाया रूप है उसको फिर प्रकट करते हैं और वो फिर जाते हैं। जो सीता जी थी वो तो भगवान श्री राम के साथ ही थी, ऐसा वो एक श्रवण आया था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। या करेक्ट प्रभु, थैंक यू। मैं वो भी पॉइंट दिमाग में था, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन तो वही है कि मतलब ये भी एक पास टाइम है कि जब अगर सीता मैया अगर वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती थी तो जो वेदावती का जो श्राप था कि मैं तुम्हारे कारण का मतलब विनाश का कारण बनूंगी, तो वही हुआ था। एंड जब लक्ष्मण रेखा जब जो वाला जब एपिसोड हुआ था, लीला हुआ था, तो वहां से वो वेदावती को जो था छाया सीता था उस रूप में ले गया था, ओरिजिनल सीता नहीं थी वो। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। Namaskar. Very well explained. Paramatma, Jivatma and Guru ka. With very nice. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी। उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, बाद में सत्यरथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। Sita was with Agni. Then only after Agni Pravesh she comes out. हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था प्रभु आपका, जैसे गोपीनाथ प्रभु ने बताया। प्रभु यहाँ पर एक मतलब एक पॉइंट ऐड करनी थी जो मैंने सुना था, बहुत ही सुंदर मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड वो कैसे है कि जैसे आपने बताया कि भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा के बगैर भगवान के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते। वे बहुत ही सत्य बात है, मतलब इट्स वेरी इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ है
कि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक हमको उनके बारे में पता नहीं चलेगा और हमको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। एक लेक्चर के अंदर मैंने सुना था, उस लेक्चर के अंदर बताते हैं कि जब हम अगर थोड़ी भी भक्ति करते हैं, एक रंज मात्र भी अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो राधा रानी भगवान से ये कहती है कि ये भक्त बहुत अच्छा है और ये भक्त मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको अपने शरण में ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी मतलब उनका जो है जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक वो आगे भगवान के सामने जाके हमारी बात नहीं करेंगे, तो भगवान भी हमको नहीं मतलब अपने आश्रय में नहीं लेते। तो जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, हमको अगर कृपा चाहिए तो हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हमको जाना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त और फिर भगवान के जैसे जो हमारे आचार्य हैं, उसके बाद में जो हमारे गुरुजन हैं, जो मतलब एक प्योर सोल्स हैं, उनके माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। और जब वो हमारी सिफारिश करेंगे या वो हमारी रिकमेंडेशन करेंगे, तब हमको भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमको ये भगवान से आशीर्वाद मिलता है और भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू हैव टू बी अ पेशेंट लिसनर, और आप बहुत पेशेंट लिसनर हो। आपने इतने सब जो है लेक्चर सुने हैं जिसके माध्यम से आपने इसको बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी अ पेशेंट लिसनर एंड लिसन ओनली, मतलब आपको क्या सुनना है। तो हमारे जैसे भागवत में बताया गया है कि भौतिक जो टॉपिक्स है उसको साइड पे रखो, जैसे भागवतम के फर्स्ट कैंटो के अंदर आता है, भौतिक जो टॉपिक्स है साइड पे रखो, सिर्फ भगवान के बारे में सुनो। जब हम वो सुनेंगे तो भगवान, और वहां पर ही हमको जो है संग मिलेगा शुद्ध भक्तों का, मतलब भक्त का मिलेगा, बाद में शुद्ध भक्त का मिलेगा, तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। सर ये पॉइंट ऐड करनी थी प्रभु। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। शिल प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा जी। सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। समीर प्रभु ने हाथ ऊपर किया था प्रभु जी। समीर प्रभु प्लीज। सत्यराज प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा पॉइंट जो है उद्धव प्रदेश प्रभु ने बोल दिया। तो प्रभु जी इसमें हैंडपैक हस्बैंड करके जो आया था उसके ऊपर प्रभु जी मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभु जी थे, उनके स्कूलमेट थे, वो स्कूलमेट बाद में वो लोग प्रोफेशनल हो गए, मतलब एक आईटी इंजीनियर हो गए और दूसरे हाई कोर्ट में जज हो गए। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो उस टाइम क्या, एक मिनट, और दोनों साथ में मतलब किधर भी घूमना वगैरह सब रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसका न्यूज़पेपर में देखा कि उसके फ्रेंड का फोटो है कि उन्होंने हाई कोर्ट में ऐसा डिसीजन दे दिया, सब पेपर में, उनका न्यूज़पेपर में आ गया। तो ये जो फ्रेंड थे उनके घर पे गए उनको बधाई देने के लिए, बहुत सारा फूल वगैरह लेके उनके घर में लेके उनके साथ मिल बैठ के फिर उन्होंने उनकी वाइफ ने उनको प्रसादम खिलाया। तो ये आईटी इंजीनियर वाले थे, ये तो डीओटी थे। तो उन्होंने उनको बताया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका सब न्यूज़पेपर में नाम आ गया वगैरह वगैरह सब हो गया। और फिर बाद में क्या होता है, उनका जस्ट प्रसादम होता है और ये जो हाई कोर्ट वाले जज है वो कुछ तो भूल गए, मतलब कुछ लेने के लिए। तो उनकी वाइफ को पूछते हैं कि ये चीज किधर है करके। तो उनका वाइफ बोलते हैं आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, आप किधर रखते हैं वो भी याद नहीं रहता। तो वो जो डिवोटी थे आईटी इंजीनियर, वो बोलते कि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया हाई कोर्ट में, सब पेपर में नाम गया, और इनकी बीबी ने क्या किया, बोला कि इनको थोड़ा भी दिमाग नहीं है। तो वो बोलते थे कि दैट्स हाउ इट इज, लाइक भगवान का जो हर एक कार्य दिव्य है। और हम लोग थोड़ा सा भी कुछ करेंगे लेकिन हम लोग के पास बहुत सारा आई मीन ड्रॉबैक्स रहेंगे, या हम लोग के पीछे कोई ना कोई बोलता रहेगा। लेकिन भगवान का हर एक कार्य, वो जैसे अभी आपने जैसे बताया माखन चोरी है, सब कुछ कार्य दिव्य है। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। समीर प्रभु जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, अपने सभी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से बताए। आपने इसमें जो बताया ना कि हनुमान जी खुद सक्षम थे सीता जी को लाने के लिए, तो प्रभुपाद जी के एक मतलब एक तात्पर्य में मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के जो पार्षद है वो सभी पार्षद इक्वली पावरफुल है। मतलब वो कुछ ही कोई भी जो अभी भी जितने दैत्य हो गए, जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लमेटिक जो सी लोग हो गए, उनको भगवान के कोई भी पार्षद आके आराम से उनको हरा सकता था, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन भगवान खुद इसके लिए आते हैं ताकि जो भक्त है और जो मतलब परित्राणाय साधूनाम, मतलब उन्होंने क्लियरली बताया कि वो परित्राणाय साधूनाम वो पहला काम है, विनाशाय च दुष्कृताम वो बाद में बोला गया। मतलब पहला विनाश नहीं है, पहला परित्राण है। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि कृष्ण या भगवान धरती पे इसके लिए उतरते हैं ताकि वो जो भक्त है उनके मन में वो एक बोलते हैं ना, बहुत अच्छा भावना फील होता है, उनको एक सिक्योरिटी फीलिंग हो जाती है कि भगवान हमारे साथ है। तो जस्ट एक पॉइंट ऐड कर रहा था। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु आपकी ब्लेसिंग के लिए। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद जी की जय। सर्वदेव प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने भी हाथ उठाया था प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बढ़िया क्लास था। जैसे कि आपने फिर गोपी मनोहर प्रभु, उद्धव कृष्ण प्रभु जी ने जो पॉइंट कहा कि मतलब भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा के बिना हम लोग मतलब भक्ति में आ ही नहीं सकते। और उन मतलब वही, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं प्रभु कि ना, मतलब भक्तों को कृपा से ही आज हमें भक्ति मिला हुआ है। तो अदरवाइज मतलब मैं भी यहाँ वहां पे भटकता रहता था। सो दैट वाज मतलब बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स लगा प्रभु जी। मतलब सिर्फ भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा के बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते प्रभु। इवन अगर समझो कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो हम लोग अगर समझो भक्तों के बीच में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो जाता है प्रभु। सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय जय। थैंक यू प्रभु, इतना सुंदर आपने ये पॉइंट बताया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जीव पवन गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था। और मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया कि वही कि भगवान कुछ भी करे, मतलब वो इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। वो रन छोड़ के भागे तो भी वो हीरो है। और हर कार्य में वो जो करते हैं वो परफेक्शन, मतलब लेकिन हम लोगों को इमिटेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट। बहुत अच्छे क्लास की। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू।